علیکم، میں ہوں بشرا شفیق، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 51۔ آئیے شامل کرتے ہیں کچھ تازہ ترین خبریں۔ پشاور ضلع انتظامیہ کا شہر بھر میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ضابطہ اخلاق کی مسلسل خلاف ورزیاں کورونا کی دوسری لہر کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں۔ پشاور ضلع انتظامیہ کا کورونا کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ نے ڈھکی نال بندی بازار میں 100 سے زائد دکانیں سیل کر دیں۔ ڈپٹی کمشنر پشاور محمد علی اصغر کا کہنا تھا کہ بار بار نوٹس کے باوجود سیفٹی ماسک کا استعمال نہیں کیا جا رہا۔ 350 مارکیٹوں میں رش اور سماجی فاصلے کا خیال نہ رکھنے پر کارروائیاں کی گئیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کورونا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سمندری دونوں بازوؤں سے محروم سنوکر پلیئر اکرام عرف شانی کو سمندری انصاف ویلفیئر گروپ کی جانب سے اسٹار گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ اکرام عرف شانی کی سنوکر کھیلنے کی خبر چینل 51 پر نشر کی گئی تھی۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زہیب اکرم کی اس رپورٹ میں۔ سمندری کچھ عرصہ قبل اکرام عرف شانی جو 440 گابے کا رہائشی ہے دونوں بازوؤں سے محروم ہے، جس کی سنوکر کھیلنے کی نیوز چینل 51 پر نشر کی گئی تھی۔ سمندری انصاف ویلفیئر گروپ کی جانب سے اکرام کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے انصاف گروپ کی جانب سے اکرام کو اسٹار گولڈ میڈلسٹ سے نوازا گیا اور ماہانہ گھر کے راشن کا بھی ریگولر بندوبست کیا گیا۔ سمندری کے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے پر زہیب اکرم چینل 51 کے نمائندے کو بھی بیسٹ پرفارمنس شیلڈ دے کر نوازا گیا۔ سمندری شہریوں نے چینل 51 کی کارکردگی کو سراہا اور خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ آئین اور قانون کی رہنمائی میں منتخب حکومت کی مدد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے امن کے لیے بھاری قیمت ادا کی ہے، امن قائم رکھنے کے لیے لہو سے اس کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ سپاہ گیری مشکل راستہ ہے جس پر چلنا آسان نہیں۔ اس راستے میں آپ کو وقف کرنا پڑتا ہے، آپ کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے ممالک کی طرح پاکستان کو جنگ، دہشت گردی اور معاشی شکنجے کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا کے بہت سے ممالک ان مشکلات کا سامنا نہ کر سکے اور بکھر گئے۔ پاکستان نے ان تمام سازشوں اور مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ Pakistan is a developing country, but our people have big hearts. They will always respect and honor you, even in your time of test and trial. You have to maintain this sacred trust with unflinching commitment and total loyalty. This relationship has been sealed and secured with countless night vigils, toils and hardships, and above all, the sweat of our Ghazis and the blood of our Shaheeds. It is now your duty to honor and protect it. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ دشمن جو ہماری تباہی کا منصوبہ بنائے بیٹھے تھے مایوسی سے ہماری کامیابیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ ذات پات، مذہب اور لسانیت سے برتر ہم سب پاکستان کے سپاہی ہیں۔ اتحاد ہماری قوت اور انشاءاللہ ہم سب متحد ہیں۔ پاکستانی قوم نے ہمیشہ چیلنجز کو کامیابیوں میں تبدیل کیا ہے، انشاءاللہ اب بھی چیلنجز کو کامیابیوں میں تبدیل کریں گے۔ The enemies who plotted our doom and destructions are now watching us with disdain. Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. This war is not fought in the battlefield but in the minds. In this new war, however, leadership at all levels is the target. Remember, we are all soldiers of Pakistan, regardless of our caste, creed, set, and ethnicity, and we will always stand together as one, as this is our strength.
जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि बहैसियत कौम हमें हालात का इदराक है और हम दुरुस्त समत जा रहे हैं। अवाम, दस्तूर, दस्तूरी रवायात सबसे बढ़कर वतन से एहते वफा हमारी असल मजबूती और ताकत है। आइन पाकिस्तान और कौमी मफादात तमाम मामलात में हमारे रहनुमा हैं। आज पाकिस्तान दिफाई हवाले से एक मजबूत पाकिस्तान है। हम आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेंगे। Our strength is our strong bond with our people, constitution of our country, democracy and democratic values that our people follow, and therefore we shall defend this bond and our democratic value to the hilt. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the constitution. We Pakistanis have proved that we can do wonders when we keep our national interest above our parochial, institutional and personal interest. Pakistan Army is proud to support the nation as it has always supported us, especially when we were fighting the physical enemies of Pakistan. You have been asked to stand firm in very difficult times, but stand you must. सरबराह पाक फौज ने कहा, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान एक खुशहाल, मुस्तहकम और मुतय्यन मकाम पर पहुँचे। एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ न सिर्फ मुसलमान बल्कि अक़लियतें भी अपने हकीकी तसव्वुर रियासत को देख सकें। हम मंजिल के करीब पहुँच चुके हैं, ताहम हमें एहतियात का दामन थामे रखना है। आज पूरी दुनिया की तरह सांगड़ में भी लड़कियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सांगड़ के देही इलाकों में बच्चियों की तालीम की शरह इंतहाई कम है, जिसको फ़रोग़ देने के लिए मकामी इदारे MDF की जानिब से पादरी जोखोट हाई स्कूल में बच्चियों के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अजीज़ुर रहमान रंद। आइए देखते हैं। आज पूरी दुनिया की तरह सांगड़ में भी लड़कियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सांगड़ के देही इलाकों में बच्चों की तालीम की शरह इंतहाई कम है, जिसको फ़रोग़ देने के लिए मकामी अदारे MDF की जानिब से पादरी जोगोट में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों के आलमी दिन की मुनासब से प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए गए, जिसमें स्कूल के बच्चों को स्टाफ व दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। मेरी प्रिंसिपल, सब टीचर्स का मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी तालीम का इजहार कर सकें। जो माँ बाप अपनी लड़कियों को पढ़ाने के हक नहीं दे सकते, उनको चाहिए कि अपनी बच्चियों को पढ़ाए। घर और खानदान की बेहतरी के लिए लड़कियों का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर ऐसा होगा तभी माशरा तरक्की करेगा। खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू 1122 ने एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी लाहौर में जारी कौमी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल कर ली। खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू 1122 ने अपने एजाज़ का दिफा करते हुए मुसलसल दूसरी बार रेस्क्यू चैलेंज जीता। एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी लाहौर में होने वाली रेस्क्यू चैलेंज में पाकिस्तान भर से 15 मुंतखब टीमों ने हिस्सा लिया। खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू 1122 ने मुसलसल दूसरी बार रेस्क्यू चैलेंज जीत लिया। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 डॉक्टर खतीर अहमद का कहना था कि रेस्क्यू चैलेंज एमरजेंसी सर्विसेज का बुनियादी मकसद रेस्क्यू एहलकारों की पेशा वराना सलाहियतों को बढ़ाना है। रेस्क्यू चैलेंज में दिए गए मसनूई टास्क हकीकी ज़िंदगियां बचाने में मावन साबित होते हैं। रेस्क्यू 1122 चैलेंज में फायर फाइट, तैराकी, ट्रॉमा, वाटर रेस्क्यू, 30 फुट कुआंनुमा गहराई से मरीज़ को निकालना और बुलंद मकाम से मरीज़ को बाहिफाजत निकालने के मुकाबले शामिल थे। ठट्टा में महंगाई बढ़ गई। आटे की कीमतों में इजाफे के बाद गरीब और मजदूरों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। ठट्टा में महंगाई की सूरत हाल पर रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे तनवीर अली। जी बिल्कुल, नए पाकिस्तान की दावे जो थे वो तो दरे के दरे रह गए। इस वक्त मुल्क भर की तरह ठट्टा में भी आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है। जहां आटा मिलता था 40 से 50 रुपए किलो, वहां आज ठट्टा में आटा 70 से 80 रुपया किलो मिला है। तो 3000 तक जो है आटे का रेट बढ़ गया है। लेकिन इंतज़ामिया ने और या हुकूमत सिंध ने या वफाकी हुकूमत ने किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं उठाए, जिसके बायस यहाँ पर जो आवाम रहती है, गरीब आवाम रहती है, वो सख्त परेशान है। इस वक्त हमारे पास एक शेरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आटे की कीमतों के हवाले से उनका क्या कहना है और हुकूमत के हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, ये जो तब्दीली सरकार आई हुई है, इमरान खान की हुकूमत है, इसने तो महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिस वक्त में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 1600 का कट्टा आटे का बिकता था, वो आज 2700 से 2800 तक पहुँच गया है।
तो इसमें गरीब जो तबका है वो बहुत परेशान हो गया है। गरीब बंदा जो आटे खरीदने की शक भी नहीं रखता है आज। तो हमारी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इसको आटे की कीमतों में कमी लाई जाए और गरीब आवाम को रिलीफ दी जाए। जी बिल्कुल, आटे की कीमतों में कमी लाई जाए। हुकूमती यहाँ के शहरियों ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर आटे की कीमतों में कमी लाई जाए और यहाँ के गरीब जो तबका रहता है उनको आटे खरीदने से महरूम नहीं किया जाए ताकि वो दो वक्त की रोटी खा सके। जी, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मामून जाफर तारड़ ने जलालपुर भटिया में एक जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि अपने हल्का की 4 यूनियन कौंसिल्स में तरक्याती मंसूबे गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान मुकम्मल किए, जबकि मज़ीद तरक्याती काम जारी हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं इमरान जमील की इस रिपोर्ट में। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मामून जाफर तारड़ ने जलालपुर भटिया में एक जलसा आम से खिताब करते हुए बताया कि अपने हल्का PP 69 में थाना जलालपुर भटिया की 4 यूनियन कौंसिल में कुल 22 करोड़ 72 लाख रुपए के तरक्याती मंसूबे गुज़श्ता 2 साल के दौरान मुकम्मल किए गए। एक जनरल जड़ा अगर ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤਖਮੀਨਾ ਲਾਈਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ इमरान खान के विजन के मुताबिक तुहाडे इलाके की तामीर और तरक्की वास्ते असीं हुण तक पहुंच सके। चौधरी मामून जाफर तारड़ का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान एक ऐसा अदारा है जो मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करता है। पाक फौज के जवान बॉर्डर पर दिन रात हमारे लिए ड्यूटियां सरअंजाम दे रहे हैं और दूसरी जानिब 3 बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले नवाज शरीफ लंदन में बैठकर इस अदारा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं जो उनको ज़ेब नहीं देता। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी ने बाद अज़ान स्ट्रीट लाइट का भी इफ्तिताह किया, जबकि जलसा आम में शेख अफजाल अहमद ने अपने सैकड़ों साथियों समेत मुस्लिम लीग नून को छोड़कर PTI में शमूलियत का ऐलान किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ज़िला मटियारी के रहनुमा नज़ीर अहमद मेमन का हाला के मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा। उन्होंने तदरीसी अमल का जायज़ा लिया और असातिज़ा और शागिर्दों में मास्क तकसीम किए। दौरे की तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद अली राजपूत की इस रिपोर्ट में। के मुख्तलिफ स्कूलों में पाकिस्तान बैतुल माल स्कूल, मखदूम तालबुल मौला स्कूल, मखदूम अमीन फ़हीम स्कूल और दीगर स्कूलों में मुस्लिम लीग फंक्शनल जिला मटियारी के रहनुमा नसीर अहमद मेमन, आमिर रजा मेमन हर एक स्कूल के लिए प्रिंसिपल और उस्तादों और शागिर्दों में SOPs के तहत मास्क तकसीम किए। जिला मटियारी के सदर नसीर अहमद मेमन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्कूल के जो भी मसाइल बताए गए हैं इंशाअल्लाह जल्द हम इनको हल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। समुद्री पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादलों का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब अकरम। समुद्री में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादलों का सिलसिला जारी है, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक समुद्री DSP नासिर नवाज को तब्दील करके टोबा टैक्सिंग तैनात कर दिया गया और नईम अजीज को टोबा टैक्सिंग से समुद्री DSP तैनात कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया पेशावर का सबसाते के वक्त सब्ज़ी और फल मंडियों का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद नईमान अली शाह ने असिस्टेंट फूड कंट्रोलर बिलाल खालिद खान के हमरा सब्ज़ी मंडी में बोली के अमल की निगरानी की। ज़िला इंतज़ामिया पेशावर ने डिप्टी कमिश्नर पेशावर मोहम्मद अली असगर की हिदायत पर सब्ज़ी और फल मंडियों का दौरा किया और बोली के अमल की निगरानी की। मसनूई तौर पर टमाटरों की कीमतें बढ़ाने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अफसरान ने बोली के बाद अपनी निगरानी में सरकारी नर्खनामा भी जारी किया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर का कहना था कि बोली के अमल की निगरानी का मकसद मसनूई ग्रां फरोशी पर काबू पाना है। मसनूई बोली और ग्रां फरोशों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने इंतज़ामी अफसरान को सरकारी नर्खनामे पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत करते हुए कहा कि सरकारी नर्खनामे के खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों को जेल में भिजवाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं ज़फरवाल से, जहां पर नवाही गांव घमरोले में सिलेंडर से धमाका हुआ। खुशकिस्मती से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आइए जानते हैं अली नदीम से।
جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ ظفرواڑ کے نواحی گاؤں گھر محلے میں پیش آیا ہے، جہاں پر ایک دکان کے اندر زوردار سلنڈر دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے کے اندر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، نہ ہی کسی شخص زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ البتہ دکان کی چھتوں اور دیواروں کو اور ملحقہ دکانوں کے کافی زیادہ حد تک نقصان پہنچا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے سوال اور المیہ یہ اٹھتا ہے کہ ظفرواڑ کی تحصیل انتظامیہ وہ اس چیز کی پابند نہیں ہے کہ وہ ظفرواڑ کی اور ملحقہ جو گاؤں ہیں ان میں اس طرح کے سلنڈر وغیرہ کو چیک کرے، کیونکہ یہ کسی بڑے تھانے کا باعث بن سکتا تھا۔ جو ظفرواڑ کے اور ملحقہ گاؤں کے شہری ہیں، انہوں نے انتظامیہ سے اسسٹنٹ کمشنر ظفرواڑ عثمان اکرم سے یہ مطالبہ کرا ہے کہ اس طرح کی جو دکان وغیرہ ہیں اور غیر قانونی جو ہوٹلز ہیں جن کے اندر آگ لگنے کی صورت میں کوئی بھی فائر فائٹنگ کا نظام موجود نہیں ہے، ان کو چیک کیا جائے، ان کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ آگ لگنے کی صورت میں کوئی ایمرجنسی طور پر انتظامات کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔